عظیم داستان جو تاریخ میں دفن ہو گئی۔ کیا اب جانتے ہیں کہ یورپ کے دل میں اسپین اور پرتگال کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت نے تقریباً 800 سال تک علم و حکمت اور روشنی کا چراغ روشن رکھا۔ اس سرزمین کو اندلس کہا جاتا تھا، ایک ایسا نام جو آج کھو چکی عظمت کی نشانی بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسی تہذیب کی کہانی ہے جو یورپ کی صورت بدل گئی مگر اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے مٹ کر رہ گئی۔ یہ کہانی ہے علم، عدل اور زوال کی۔ سن 700 عیسوی کے آس پاس دنیا ایک نئی کروٹ لے رہی تھی۔ یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک نیا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو ترقی کی راہوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ بربر جرنیل طارق بن زیاد نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ افریقہ سے یورپ کا رخ کیا۔ اگرچہ ان کے ساتھ صرف چند سو سپاہی تھے لیکن ان کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ انہوں نے جبل الطارق کی چٹانوں پر قدم رکھا جہاں سمندر کی لہریں ان کے عزم کا امتحان لے رہی تھیں۔ ان کا مشن لوٹ مار نہیں تھا بلکہ علم، عدل اور انسانیت کی روشنی پھیلانا تھا۔ ان کا مقصد ظلم کے اندھیروں کا خاتمہ اور انسانیت کو ایک نئی امید دینا تھا۔ قرآن کی تعلیمات ان کے دلوں میں روشنی کی طرح جگمگا رہی تھی اور ان کا ایمان انہیں ہر مشکل سے لڑنے کی طاقت دے رہا تھا۔ جنگ وادی لکا بیٹا او میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وسگوتے سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی بلکہ حسن یقین اور انصاف کی جنگ تھی۔ طارق بن زیاد کی قیادت میں ایک نئی تاریخ لکھی گئی، ایسی تاریخ جو آج بھی دنیا کو ہمت، صبر اور یقین کا پیغام دیتی ہے۔ اسی فتح نے الاندلس کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر علم، فن اور تہذیب کا مرکز بن گیا۔ اس کی ابتدا یقین، تقوی اور علم سے ہوئی۔ اندلس کی گلیوں میں علم، انصاف اور فنون کی روشنی پھیل گئی۔ طارق بن زیاد کا ایمان ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ جب ارادے مضبوط ہوں اور ایمان سچا ہو تو تاریخ بھی بدل سکتی ہے۔ فتح کے بعد اندلس خلافت امویہ کا صوبہ بن گیا، مگر مشرق میں سیاسی تبدیلیوں نے حالات کو بدل دیا۔ عباسیوں نے اموی خلافت کا تختہ الٹ دیا، مگر ایک نوجوان شہزادہ عبد الرحمن الداخل بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اندلس پہنچا جہاں عرب اور بربر قبائل آپس میں لڑ رہے تھے۔ عبد الرحمن نے اپنی ذہانت سے ان اختلافات کو ختم کیا اور قرطبہ کا امیر بن گیا۔ اس نے پیشہ ور فوج، مضبوط انتظامیہ اور عظیم جامع مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی۔ اندلس کو ایک متحد اسلامی ریاست میں تبدیل کیا جو آنے والے سنہری دور کی بنیاد بنی۔ یہ علم اور تہذیب کا آغاز تھا۔ جب یورپ تاریکی کے دور سے گزر رہا تھا، قرطبہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر بن چکا تھا۔ قرطبہ کی روشن گلیاں، لاکھوں کتب اور دنیا بھر سے علماء و فضلاء یہاں آتے۔ الزہراوی نے جراحی میں انقلابی کام کیا، الزغلی نے فلکیات کو نئی بلندیاں دیں۔ یونانی، رومی اور فارسی علوم کا عربی میں ترجمہ کیا گیا جو بعد میں یورپ تک پہنچے۔ یہ سب رواداری اور علم سے محبت کی بدولت ممکن ہوا۔ یہاں تک کہ عیسائی اور یہودی علماء بھی اسلامی تعلیمی مراکز میں علم حاصل کرتے، کیونکہ یہ سرزمین صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے علم، انصاف اور ترقی کا مرکز بن چکی تھی۔ یہ سب ممکن ہوا علم، تحقیق، رواداری اور انصاف کی بنیاد پر۔ کرسچن اور یہودی بھی اپنے مذہب کے ساتھ اس تہذیب کا حصہ تھے۔ یہی مکالمہ رینیسانس کی بنیاد بنا۔ الاندلس یورپ کے لیے روشنی کا مینار تھا، مگر ہر عظیم سلطنت کو زوال کا سامنا ہوتا ہے۔ الاندلس بھی اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے بکھرنے لگا۔ اسلامی اصولوں سے دوری، سیاسی اختلافات اور عیش و عشرت نے اس کی بنیادیں کمزور کر دیں۔ عرب، بربر اور دیگر گروہ آپس میں لڑنے لگے اور ریاست چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ دشمنوں کو اب صرف انتظار تھا، الاندلس خود ہی اپنے ہاتھوں سے بکھرنے لگا۔ فتنہ یعنی خانہ جنگی نے خلافت میں قرطبہ کو تقسیم کر دیا۔ طائفہ کنگڈمز کا دور شروع ہوا۔ اب 20 سے زیادہ چھوٹی ریاستیں ہر ایک اپنی طاقت اور شوکت دکھانے میں مصروف تھیں۔ مسلمانوں کے قلعے فتح کر رہے تھے اور کرسچن دشمن اس فساد کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ طائفہ ریاستوں نے کرسچن ریاستوں کو خود پر مسلط کر لیا، انہیں پیسہ دیا اور اپنے ہی دشمنوں کو مضبوط کیا۔ یہ تقسیم کرسچن ریکنکوسٹا کے لیے سنہری موقع تھی۔ کرسچن ریاستیں مسلم اختلافات کا فائدہ اٹھا کر الاندلس کو آہستہ آہستہ چھینتی گئیں۔ مسلمان اپنی تباہی خود لکھ رہے تھے۔ جب مسلم حکومت کمزور ہوئی اور ابرا جزیرہ نما
आइबेरियन पेनिनसुला छोटी छोटी ताइफा रियासतों में बट गया तो ये सूरत-ए-हाल क्रिश्चियन रियासतों के लिए एक मौका बन गई। मुसलमान रियासतें आपस में लड़ रही थीं और उनकी बेइत्तेफाकी ने उनके दुश्मनों को ताकतवर कर दिया। क्रिश्चियन रियासतें जो सदियों से अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर रही थीं, अब एक नई उम्मीद के साथ इकट्ठी होने लगे। उनका मकसद सिर्फ ज़मीन वापस लेना नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और मजहबी तशख़्ख़ुस को दोबारा कायम करना भी था। रेकनकोस्टा अब एक ऐसी मुहिम बन गई थी जिसमें हर क्रिश्चियन रियासत ने अपनी पूरी कुव्वत झोंक दी। इस जंग को सिर्फ फौजी मरका नहीं समझा गया, बल्कि इसे एक मुक़द्दस मिशन तस्वुर किया गया। क्रिश्चियन जवान अपने ईमान और वतन की खातिर जंग के मैदान में उतरे। उनके लिए ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि मजहबी जंग थी, जिसका मकसद अपनी ज़मीन को मुस्लिम हुक्मरानी से आज़ाद करवाना था। इसी दौरान अल-मुरावैद और अल-मुवहिद बर्बर हुक्मरानों ने कुछ अरसे के लिए मुसलमानों को दोबारा मुत्तहिद किया। इन बर्बर हुक्मरानों ने स्पेन में अपनी ताकत दिखाई और आर्जी तौर पर क्रिश्चियन रियासतों की पेशकदमी को रोक दिया। उनका आना मुस्लिम अवाम के लिए एक नई उम्मीद था, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर कायम न रह सका। उनके दौर हुकूमत में भी अंदरूनी इख्तिलाफात, सियासी बेचैनी और फसाद पैदा हो गया। बर्बर हुक्मरानों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा होने लगे और उनकी हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी। उंडलस के अंदर भी अवाम में बेचैनी बढ़ती गई और मुस्लिम सल्तनत अंदर से बिखरने लगी। 1212 की बैटल ऑफ लास नावास दे तोलूसा, बैटल ऑफ लास नेवस द टलोसा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये जंग एक फैसला कुन मोड़ था, जहां क्रिश्चियन अफवाज ने मुस्लिम लश्कर को शदीद शिकस्त दी। इसके बाद मुस्लिम हुकूमत की बुनियादें हल गईं और क्रिश्चियन रियासतें तेजी से आगे बढ़ने लगे। कर्तबा, विलेंसिया और इशबिलिया, सीवेल एक एक करके क्रिश्चियन अफवाज के कब्जे में आते गए। इन शहरों की मसाजिद गिराई गईं, उनकी इस्लामी शनाख्त मिटा दी गई। हर नई फतह के साथ मुसलमानों की तहजीब और मजहबी निशानियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गईं। अवाम को ज़बरदस्ती तबला मजहब पर मजबूर किया गया। कई मुसलमानों को अपना दीन छोड़ना पड़ा, जबकि बहुत सों को अपने घर, शहर और वतन छोड़कर हिजरत करना पड़ी। उंडलस की वो गलियां जो कभी इल्म, तहकीक और तहजीब का मरकज़ थीं, अब खाली होती जा रही थीं। शुमाली अफ्रीका से आने वाली मदद भी सिर्फ वक्ती साबित हुई। बर्बर अफवाज और उनके हुक्मरान स्पेन के मसाइल हल ना कर सके। उनकी इमदाद कुछ अरसा तो चली, लेकिन क्रिश्चियन रियासतों की कुव्वत और अज़्म के सामने वो भी नाकाम हो गई। अब सिर्फ गरनाता का एक छोटा सा इलाका बाकी बचा, जो मुस्लिम हुकूमत का आखिरी मरकज़ था। गरनाता की गलियां, इसके महल्लात और उसकी मसाजिद एक आखिरी उम्मीद की रोशनी थी, लेकिन ये रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती जा रही थी। गरनाता अब एक आखिरी चिंगारी थी अल-उंडलस में, जहां से कुछ लोग अब भी उम्मीद रखते थे कि शायद सब कुछ वापस आ सके, लेकिन धीरे धीरे मिटा दी गई। अवाम पर ज़बरदस्ती तब्दीलियां मुसल्लत की गईं। मुसलमानों को अपने मजहब से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया गया, जबकि दूसरों को अपने घर, शहर और मुल्क छोड़कर निकलना पड़ा। उंडलस की वो गलियां जो कभी इल्म और तहजीब का मरकज़ थीं, अब वीरान होती जा रही थीं। शुमाली अफ्रीका से आने वाली मदद भी आर्जी साबित हुई। बर्बर फौजी और उनके हुक्मरान स्पेन की मुश्किलात को कम ना कर सके। उनकी मदद कुछ वक्त के लिए ज़रूर फ़ायदामंद रही, मगर ईसाई रियासतों की कुव्वत और अज़्म के सामने वो भी बेअसर हो गई। अब सिर्फ गरनाता का एक छोटा सा इलाका बाकी रह गया, जो मुस्लिम हुकूमत का आखिरी मरकज़ था। गरनाता की गलियां, इसके महल और उसकी मसाजिद अभी भी उम्मीद की एक आखिरी रोशनी थी, मगर ये रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ रही थी। गरनाता अब एक आखिरी चिंगारी थी उंडलस में, जहां से कुछ लोग अभी भी ये उम्मीद रखते थे कि शायद सब कुछ वापस आ सके, लेकिन वक्त के साथ वो चिंगारी भी बुझने लगी। अल-उंडलस का सफ़र अब अपने अंजाम के करीब था। सदियों की रोशनी, इल्म और तहजीब अपने आखिरी मोड़ पर थी और एक नया दौर शुरू होने को था। गरनाता 200 साल तक मुसलमानों का आखिरी मरकज़ रहा। अलहमरा की शान एक डूबती हुई तहजीब की आखिरी चमक थी। 1492 में कास्टीला और इरागोन की मुत्तहिदा ईसाई अफवाज गरनाता पर टूट पड़ी। महीनों के मुहासरे के बाद आखिरकार नासिर बादशाह अबू अब्दुल्ला ने शहर हवाले कर दिया। रवायत है कि अबू अब्दुल्ला ने पीछे मुड़कर अपने शहर की तरफ देखा और आंसू बहाए, द लेस्ट साई ऑफ द मुर।
मुसलमानों को पहले आज़ादी का वदा दिया गया, मगर जल्द ही ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब और इंक्विजिशन का आगाज़ हो गया। अरबी ज़बान, किताबें और तहज़ीब को मिटा दिया गया। एक तहज़ीब को सिर्फ नीस्त व नाबूद नहीं किया गया, बल्कि इसकी याद को भी दफन कर दिया गया। अल-अंदलस की कहानी सिर्फ गम की नहीं बल्कि सबक की कहानी है, मुस्लिम उम्मा के लिए एक आईना। ये वो सरजमीन थी जहां इल्म, हुनर और अदल ने एक नई तहज़ीब को जन्म दिया। लेकिन इस कहानी में एक गहरा पैगाम छुपा हुआ है जो हर दौर के मुसलमान के लिए है। अल-अंदलस की रोशनी, इसकी तरक्की और उसका ज़वाल, सब कुछ आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। सबसे बड़ा सबक वहदत की अहमियत का है। जब दिल एक हुए, जब मकसद एक हुआ, तब कामयाबी मिली। उनकी कुव्वत उनकी वहदत में थी और उसी वहदत ने उन्हें रहनुमाई अता की। लेकिन जब मुसलमान आपस में तकसीम हुए तो ज़वाल आ गया। तारीख गवाह है कि जब फ़िरक़ों में बटे, आपस की लड़ाइयों में उलझे, तो दुश्मनों ने फ़ायदा उठाया और जो कभी एक थे वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दुनिया की मोहब्बत, ऐश व इशरत की तलब और असल मकासद से दूरी ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। जब माल और दौलत की दौड़ और आरामदेह ज़िंदगी उनका मकसद बन गई तो उनकी रूहानी ताकत ख़त्म हो गई। इस्लामी उसूलों से इन्हिराफ, अदल और इल्म को भला देना तबाही का सबब बना। जब इल्म की रोशनी मध्यम पड़ी और अदल की जगह जुल्म ने ले ली तो उनका निज़ाम गिर गया। किताबों की गर्दिश रुक गई और अदालत की कुर्सी खाली हो गई। आज भी मुस्लिम दुनिया इसी तकसीम, मादा परस्ती और मजहबी शिद्दत पसंदी का शिकार है। फ़िरका वारियत, नफ़रत और इंतशार ने उम्मत को कमज़ोर कर दिया है। मुआशरे में नाइंसाफ़ी, जहालत और एक दूसरे से दूरी बढ़ती जा रही है। अल-अंदलस की तारीख़ एक खुदाई वार्निंग है। शौकत व अज़मत ईमान, वहदत, अदल और कुर्बानी से हासिल होती है, न कि महज माजी पर फ़ख्र करने से। ये सबक है कि अगर हम अपनी असल जिदोजहद को भूल गए तो हम भी इसी अंजाम का शिकार होंगे। सिर्फ माजी पर फ़ख्र काफ़ी नहीं, अमल और इत्तेहाद ज़रूरी है। ये तारीख़ सिर्फ रोने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए है, ताकि हम अपनी खोई हुई अज़मत दोबारा हासिल कर सकें। इल्म, अदल और वहदत को अपना कर ही हम अपना मुस्तक़बिल रोशन बना सकते हैं। हर नई नस्ल को ये पैगाम देना होगा कि उनकी असल ताकत उनकी तालीम, अखलाक और इत्तेहाद में है। ये कहानी माजी का आईना है और मुस्तक़बिल का नक्शा भी। अल-अंदलस की तारीख़ हमें बताती है कि अगर हमने माजी से सबक ना सीखा तो हमारा मुस्तक़बिल भी अंधेरे में डूब सकता है। लेकिन अगर हमने इल्म, अदल और वहदत को अपनाया तो नई रोशनी फिर से चमक सकती है।